us because I'm also joined in by Brinda Adige, activist on the phone line right now. Brinda, what more can we say when you have leaders like these, when women and young girls are raped and brutally murdered from their constituency, and all they can say is that they were visiting the national capital to buy undergarments? Absolute atrocity, obnoxious people. They cannot call themselves elected representatives because they consider citizens as slaves. He could not even make a statement of condolence, a statement of assurance that he had gone out for whatever reason. There was no reason for him to particularly make a mention of purchasing undergarments, as if undergarments are more important than the lives and safety of the young girls. Absolutely shameful fellow. I think the citizens must look at these guys and say, are they worthy of my vote? And Brinda, you know what's even more shocking is if you look at his expressions, he's looking absolutely remorseless. He's clearly not owning up to any responsibility by him or his family. He's rather smirking and making light of the situation. Absolutely. I see his face. He's mocking democracy. He's mocking citizens. He's mocking the law of the land. What right does he have to continue to sit in that position? What right does he have to hold power? He has not even been able to tell that his police will investigate, that justice will be served in course of time, that law will be able to absolutely find who those fellows are and build a watertight case. He's so shameless. He and the chief minister, belonging to the same family, absolutely shameless. They are unworthy even of a single rupee as taxes from us. They should not only apologize, they must step down from their positions. Brinda, at a time when Jharkhand has been in the middle of political unrest, what does this kind of an attitude by the Sorens speak of the Soren government in Jharkhand? Absolute no respect for the people. They have been given charge, they have been given responsibility to be accountable to the people, to talk about the safety and protection of children and women who are being raped and hanged and killed and murdered, and all he has to say is that he went somewhere and came. I think this family, complete family, is shameless. I hope that the citizens understand now at least what kind of a family this is and not vote these people back into power, because such people care only for themselves and their coffers, and they are not worried about citizens, their safety, and certainly not about the respect that citizens must command from such elected representatives. Brinda, stay with us. I'm also joined in by Mr. Nishikant Dubey of the BJP. Mr. Dubey, क्या कहना चाहेंगे? इतने शॉकिंग रिमार्क का मुझे लगता है कि कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि ये वही लीडर्स हैं जो अपने को वहाँ के दलित और ट्राइबल्स के लीडर्स बताते हैं, और आज जहाँ एक सद्भावना में साथ में खड़े होने का वक्त आता है उस फैमिली के साथ, ये कह रहे हैं और लाइट बना रहे, मतलब इस सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे हैं कह के कि हम अंडरगारमेंट्स खरीदने गए थे दिल्ली। ये राजनीति का विषय नहीं है मैडम। इतना इनसेंसिटिव, इतना इनह्यूमन किसी जनप्रतिनिधि का व्यवहार हो सकता है? अपने आप को तो एमपी एमएलए कहने में उनको शर्म आती है कि नहीं आती है? मेरे जैसे लोगों को निश्चित तौर पर शर्म आती है। गरीब आदमी का मजाक उड़ाना, गरीबी का मजाक उड़ाना, और खासकर महिला सुरक्षा के बारे में केवल ये बसंत सोरेन जी का बयान नहीं है। आप लोगों ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही इसके पहले एक इनसेंसिटिव बयान दिया कि इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं। आप समझें, पुर्तगाल एक ऐसा देश है जहां एक महिला की जो है डेथ हो जाती है और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। आदमी के जान की कीमत, एक महिला के जान की कीमत, बच्चे की जान की कीमत इतनी होती है, और वो अंडरगारमेंट खरीदने की बात करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं, क्योंकि मैं वहीं से राजनीति करता हूं, मेरा जिला है, दोनों भाई जो है मेरे जिले से, एक दुमका से एमएलए हैं और एक गोड्डा से एमएलए हैं, हेमंत सोरेन जी और बसंत सोरेन जी। इन लोगों ने जो अंडरगारमेंट का जो एक उदाहरण दिया है ना, एक दिन दुमका की जनता और संथालपना की जनता, झारखंड की जनता, जैसे राजपक्षे परिवार को श्रीलंका से बाहर कर दिया ना, इन पूरे परिवार को बिना अंडरगारमेंट के बाहर कर दे। और ये देश के लिए समझने की बात है कि आदिवासी के नाम पर, दलित के नाम पर,
परिवारवाद के नाम पर, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर बोलते रहते हैं कि परिवार के वाद के नाम पर किस तरह के भ्रष्टाचारी, किस तरह के इनह्यूमन, इनसेंसिटिव आप उस व्यक्ति को ले आते हैं जिसको कि अपने राज्य की समझ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप 15 मिनट उनके साथ बैठिए। मैं तो बैठा हुआ हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री हमारे, स्वाभाविक है कि उनके साथ मीटिंग में बैठने का मौका मिलता है। उनको ना महिला की सुरक्षा का कोई रोड मैप है, ना उनको देश राज्य के डेवलपमेंट निशिकांत का कोई दुबे रोड जी, मैप है। आपने कहा कि इनकी जनता इनको बिना अंडरगारमेंट्स के ही बाहर करके रहेगी, पर कब करके रहेगी? इस तरह के स्टेटमेंट्स शायद अब जो मेजॉरिटी प्रूफ कर दी गई है असेंबली में, उसी का नतीजा है, उस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है चेहरे पे। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है? लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि है ना। जनता बहुत तेज है। आपको मैं ये बता सकता हूं कि जनता वो पूरा गुस्सा जो है अपने अंदर उसने पी के रखा है। जिस दिन उसको मौका मिलेगा, आज मिले मौका, 6 महीने के बाद मौका मिले, साल भर के मौका तो मिलेगा ना। चुनाव तो 5 साल के लिए होता है ना मैडम। 5 साल के बाद जब मौका मिलेगा तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आपको कहीं अस्तित्व पे नजर नहीं आएगी। यदि मैं संथालपना को ठीक ठाक समझता हूं, क्योंकि मुझे भी 14-15 साल हो गए और उस जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त है। 3 बार का मैं सांसद हूं और उन्हीं जिलों से हैं। मैं उन लोगों को जानता हूं। वो लोग क्रांतिकारी जीव हैं। फूल क्रांति 1857 की क्रांति के पहले ही सिद्धो कान्हो की क्रांति होगी 1855 में। पूरे के पूरे परिवार ने, चाहे वो तिलका मांझी हो, जो सिद्धो कान्हो हो, बिरसा मुंडा हो, सबों ने, चांद भैरव, फूलो झानो, जिन्होंने बलिदान दिया, और बलिदान दिया है इसी आतताई और आक्रमणकारी लोगों के खिलाफ, जो कि इनह्यूमन थे, इनसेंसिटिव थे, जो अंग्रेज हमारी बहू बेटियों की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहे थे। उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। निशिकांत उनको अंग्रेजों से लड़ने में परेशानी नहीं हुई। जो सोरेन परिवार अपने आप को चाहे वो दलित समाज हो या फिर आदिवासी हो, उनका रखवाला बनाकर वोट मांगता है, ऐसे परिवार के लिए आप झारखंड की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आदिवासी लड़की, जिस परिवार ने, जिस लोगों ने वोट दिया, ये जो दुमका की लड़की है, उसमें अंकिता को छोड़ दीजिए तो दुमका की जो दूसरी लड़की है वो भी आदिवासी है। लोहरदगा में जो घटना हुई वो भी आदिवासी लड़की है। खूंटी में जो घटना हुई वो भी आदिवासी लड़की है। अपने वोट बैंक को यदि कोई सुरक्षित नहीं रख सकता और अपने वोट बैंक के लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कोई इतना इंसेंसिटिव हो सकता है, तो आपको लगता है कि वो भविष्य में जो है उसकी राजनीति चलने वाली है? मैं आपके चैनल पर इतना ही कह सकता हूं कि समय खत्म हो गया। परिवारवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा करना, चुनना बंद करिए और उनको चुनिए जो आपके प्रति जिम्मेवार हो, जो आपके प्रति सेंसिटिव हो, और जो खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, हमारे लोगों को रोजगार देने के लिए, कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार हो, जिसको लगता है कि उसके पास रोड मैप है, उन्हीं को वोट करिए। यही मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। जी निशिकांत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Brinda, if you're still there, I'd like to take one last question from you. What would you like to say about the Soren family, which has been treating the tribals and the Dalits, as far as Jharkhand is concerned, only as a vote bank, and when it comes to providing protection to the women and the young girls within the state of Jharkhand, they're proving to be an utter failure. And not just that, there are accusations of love jihad, of them playing appeasement politics as well. First and foremost, the Soren family must understand that all the confidence the tribals and the Adivasis placed in them, they have managed to categorically, systematically erode it. Nobody Brinda, I'm really sorry to interject.